Hello everyone, this is Jasmeet Bhatia from Landmark Immigration, and today I have a special guest with me, Mr. Gaurav, a manager North India of St. Lawrence College. So I want to welcome Gaurav you to our head office, Mohali. Thank So you, thank sir. you for coming to our office, and I would like to have information for which is very useful to students. Sure. First of all, thank you for having me, sir. And if I give you a brief about my college is St. Lawrence College. We are based out of Ontario province. My main campus is Kingston. We were established in 1967 and we have three campuses. One is Kingston, second is Cornwall, third is Brockville. It is very near to, you must have heard of Toronto, all right? So Kingston is just 3 hours from Toronto by road. Or if I talk about Ottawa, Kingston is my main campus and it is 2 hours from Ottawa. You may have heard of Kingston earlier. I'll love to give you a brief about Kingston or Brockville or Cornwall, these cities where I have my campuses. So Kingston was once the capital of Canada. So it is fully developed. It is not that you're going to some backward area, rural area, underdeveloped area. The population is approximate 1,75,000 and there are approximate 40,000 students studying in different colleges. So you would get amazing environment. There are lots of part-time jobs, full-time job internships available. If I talk about my second campus, which is Brockville, so Brockville is a tourist destination. There are tons and tons of tourists around the clock, around the year. So you would have many jobs available. Now coming to Cornwall, Cornwall, like it has the lowest rent in entire Canada. So the cost of living is very less. Also, because the rent is less, so many major e-commerce companies or retail stores they have opened their warehouses there. So there are lots and lots of job opportunities there. So it's a great information, Gaurav, because I know I've been working with St. Lawrence past 10 years, maybe more than 10 years, and they have a great campus in Kingston, and we've had no issue sending students to Kingston campus. So, और बताएं, what is the application fees for the college? All right. Normally we are open for two intakes. One is May and second is September. So we the application fees is $100. We normally say like 21 days, 3 weeks is the TAT. 3 हफ्ते में आपको ऑफर लेटर आ जाता है और $100 आपको पे करना होता है उसके लिए. So $100 is the application, and now we'll discuss about the entry requirement. So what is the entry requirement for UG and PG courses? श्योर सर. तो यूजी के लिए मेरे को आपके ओवरऑल 10th में 50% चाहिए, 10+2 में ओवरऑल 50% चाहिए अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स से हो तो. अगर आपके पास नॉन मेडिकल है तो मेरे को 10th में ओवरऑल 50, 10+2 में ओवरऑल 50 और मैथ्स में 50% या उससे ज़्यादा चाहिए होगा 10+2 में. और अगर आप मेडिकल से हो तो 10th में ओवरऑल 50, 10+2 में ओवरऑल 50, बायो में 50 या उससे ज़्यादा. ठीक है. एज ऑफ नाउ मैं सिर्फ आइल्स एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं पीटी टॉफल डुलिंगो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ. आप यूजी के स्टूडेंट हैं तो मुझे 6 नॉट लेस देन 6 बैंड चाहिए होंगे. अगर आप पीजी के लिए जा रहे हो तो मैं सिर्फ ग्रेजुएशन में मुझे 50% या उससे ज़्यादा 50% और मोर चाहिए होंगे. प्लस मैं आइल्स के लिए बोलूँ तो 6.5 नॉट लेस देन 6 स्कोर रहेगा. तो आइल्स मैं रिपीट कर देता हूँ, यूजी के लिए 6 नॉट लेस देन 6, पीजी के लिए 6.5 नॉट लेस देन 6. अगर मैं गैप का आपको बताऊँ तो करंटली जैसे कि मैं मई 2023 या सितंबर 2023 की अगर मैं बात करूँ तो आपको 2019 ऑनवर्ड्स मैं 10+2 के लिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ. अगर आपने 10+2 किया 2019 में, 20 में, 21 में या 22 में तो आप एलिजिबल हो मेरे कॉलेज में अप्लाई करने के लिए. इस तरह अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करता हूँ, आपने ग्रेजुएशन किया, पीजी के लिए जाना चाह रहे हैं तो 2017 ऑनवर्ड्स, so 17, 18, 19, 20, 21, 22 यू बिकम एलिजिबल टू अप्लाई इन माई कॉलेज. सो 6 ईच. तो देखो इस टाइम अगर किसी स्टूडेंट को भी वीज़ा लेना है, आई पर्सनली डोंट एडवाइज कि बिलो 6 ईच बैंड से आप अप्लाई करें, बिकॉज द वीज़ा सक्सेस रेट इज़ रियली लेस इफ़ यू अप्लाई बिलो 6 ईच, एंड मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस आर एक्सेप्टिंग ओनली 6 ईच. एंड फॉर पीजी प्रोग्राम्स मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर सेइंग 6.5, no band less than 6. So I think we have some seats available for May intake right now. Yes, we have very less programs. We have seats available in business programs, like there could be seats available for business, accounting, HR, marketing. We need to check because obviously seats get like full or it is a live process. प्लस हॉस्पिटैलिटी मेरे पास अवेलेबल होगा मई के लिए. सितंबर की बात करूँ तो मेरे पास सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं. अगर आपको लगता है कि आपका आइल्स कंप्लीट है और जो मैंने आपको रेफरेंस के लिए प्रोग्राम्स बताया आपको लगता है कि आप इन प्रोग्राम्स में मई में जाना चाहते हो, आई थिंक दैट यू शुड अप्लाई. अगर आपने आइल्स नहीं दिया है या आपको लग रहा है कि अभी आपका 12th का स्कोर पेंडिंग है, एग्जाम्स पेंडिंग है या ग्रेजुएशन के पेंडिंग है, देन यू बिकम बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर सितंबर इनटेक. मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप
अगर मैं आपको लैंडमार्क के बारे में बताऊं, हमारा एक ट्रस्टेड पार्टनर है। आपको कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी क्वेरीज हैं, आप आके इनसे मिल सकते हो, डिस्कशंस कर सकते हो। अगर ज़रूरत पड़ता है तो ये मेरे को तुरंत वहीं पे डायल कर देंगे, मैं भी फ़ोन पे अवेलेबल रहूँगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप कॉलेज डिसाइड कर लो, प्रोग्राम डिसाइड कर लो, इनटेक सबसे एंड में आना चाहिए। नॉर्मली हम इनटेक से शुरू करते हैं और इस करके हम गलत डिसीजंस ले जाते हैं। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से कि आप आइल्स का 6 नॉट लेस देन 6 या 6.5 नॉट लेस देन 6 है, इस चीज़ को आप मीट करो। बिल्कुल। कोई ऐसा ना हो कोई कॉलेज आप 5.5 वाला उठा लो या इनटेक के चक्कर में आप कहीं और ऐसे कॉलेज में चले गए, देन यू वुड बी स्टक इन लाइक कैच 22 सिचुएशन की वापस आप आ नहीं सकते, वहां रह नहीं सकते। अगर मैं मई और सितंबर में बोलूँ तो सिर्फ 3 महीने का फर्क है, जून जुलाई अगस्त। सो डू नॉट एम्फेसाइज ऑन इनटेक, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर अच्छा डिसाइड करो, जैसे कि लैंडमार्क। उसके बाद आपने कॉलेज डिसाइड कर लिया, मान लो आप सेंट लॉरेंस जा रहे हो, प्रोग्राम डिसाइड कर लो, देन टॉक टू अस अबाउट इनटेक्स। अगर हमें लगेगा आपने सितंबर के लिए अप्लाई किया है, आपका वीज़ा आ गया है, अगर मई में सीट रहेगा हमारे पास उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, तो हम पूरा कोशिश करेंगे आपको उसमें सीट देने का। So that's a great thing कि कॉलेज अगर आपका सितंबर का भी वीज़ा आ गया, देन ऑल्सो इफ यू वांट टू स्टार्ट इन मे दे कैन हेल्प यू आउट। एंड किंगस्टन इज अ वेरी अट्रैक्टिव लोकेशन बिकॉज इट इज 2 hours फ्रॉम टोरंटो एंड 2.5 hours फ्रॉम मॉन्ट्रियल। इट्स काइंड ऑफ इन द मिडल ऑफ टोरंटो एंड मॉन्ट्रियल। So students, so if you have some relatives in Toronto also, you can meet them it's very close to Toronto and it's very close to Montreal also. So it is a great location to study in Canada and you can have mix of both Ontario and Quebec because you can go, because students weekends पे चाहते हैं कि हम कहीं explore करने जाएं, तो आप Montreal भी जा सकते हैं and आप Toronto भी visit करने जा सकते हैं। So एक real question पूछता हूँ कि what kind of like as you said that कि population बहुत अच्छी है, 1,05,000 टाउन की population है किंगस्टन की। पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में कैसा आप कुछ गाइड करना चाहेंगे बच्चों को, बिकॉज आजकल बच्चे इस चीज़ को लेके बड़ा ही कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि जॉब्स है, आपको भी मालूम है, रेस्टोरेंट्स हुए या बाकी सब जॉब्स इजीली अवेलेबल होती है एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इस समय आपको मालूम है कोविड के बाद सिचुएशंस बेटर हो रही हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे नई नई जॉब्स निकल कर आ रही हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, अगर आप स्टार्टिंग के 2 साल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आपको स्टार्टिंग में और जॉब्स तक करने के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। वहाँ पर बहुत सारी जॉब्स हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हम आपको फाइनल प्लेसमेंट देते हैं कि अगर मैंने मान लो आपको कुछ प्रोग्राम्स बताए जिसमें आपको फाइनल प्लेसमेंट दिया जा रहा है, अगर आप उनमें से ग्रेजुएट होते तो 89 का फाइनल प्लेसमेंट हो जाता है। हमारे कुछ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स हैं जैसे SSF, स्टूडेंट सक्सेस फैसिलिटेटर। आपके साथ आपके प्रोग्राम के बेसिस पर एक कंसर्न्ड पर्सन अवेलेबल रहेगा, आप उनसे जॉब्स के लिए, एकोमोडेशन के लिए, कुछ भी आपको चैलेंज आता है उनसे कनेक्ट कर सकते हो। So it is a great thing because all the colleges have international student advisors on their campus and they advise students for accommodation, for part-time jobs, and if anything, any problem they are facing during their studies. So I feel St. Lawrence College is a very, very good option, students. And right now we have May intake and September intake. Both are open. And if you're looking forward to applying in any of the intakes, you should contact Landmark Immigration. And Landmark Immigration has offices across India. Like if you start from Gujarat, we have an office in Vadodara, we have an office in Jammu, we have an office in Jind, Haryana. Then we are soon coming up with another office in Karnal. And then I have an office in Sector 17, Chandigarh, Mohali, head office, Ludhiana, Jalandhar, Amritsar, Moga, Bathinda. So we're trying to cover all the areas. But if you want to meet me personally, then you should call at 90413 90412 or send your WhatsApp at this number. So we can also have your call on with Mr. Gaurav also, because we work really closely with St. Lawrence College. So I think it is really great that you have given such important information, Gaurav, to students. In the end, you want to say any words to the students? आपको एक चीज़ का एश्योरेंस है, एक पब्लिक कॉलेज है, ट्रस्टेड कॉलेज है, पुराना कॉलेज है। वी वर एस्टैब्लिश इन 1967, ठीक है, पुराना कॉलेज है और हमारे पुराने पार्टनर्स हैं। आपको कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप अपने डाउट्स लेकर, क्वेरीज लेकर, कंसर्न्स लेकर लैंडमार्क में सर से विजिट कर सकते हो, सर की टीम से विजिट कर सकते हो। मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि अगर आपको कोई भी चैलेंज आता है रिगार्डिंग सेंट लॉरेंस, आई एम जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे। इनकी टीम मुझे कॉल करेगी, मैं आपके साथ फ़ोन पे अवेलेबल रहूँगा आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। आप कैनेडा पहुँच जाते हो, आपको उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आता है किसी भी तरह से, आप सर से कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको रिजॉल्व कर देंगे हम लोग। मैं कम्युनिकेट कर दूंगा, मैं कम्युनिकेट कर दूंगा अपनी इंटरनेशनल टीम को, या फिर मैं आपको कंसर्न पर्सन के नाम डिटेल्स दे दूंगा, सो दैट यू कैन मीट देम इन पर्सन एंड यू कैन लेट देम नो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है।
So it is a great support from your side, Gaurav. So we are all here to help you guys, and we are here that you should have a successful career in Canada. And उसके बाद लैंडमार्क इमिग्रेशन की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है जब आप अपना स्टडी वीज़ा लैंडमार्क इमिग्रेशन के साथ अप्लाई करते हैं. So thank you, Gaurav, and thank you everyone for watching this video. Thank you. Thank you for having me, sir. Thank you.